Hello students, in last video we did the rules for the IUPAC naming of coordination compound. So you will get to know how to name the coordination compound by practicing, and NCERT exercises are given so you can practice from it, and if you have any problem you can ask me. Okay, now we will do the topic isomerism. So we know that what is isomerism. Isomerism is shown by the molecules or compounds which have same molecular formula but different structures, right? So those compounds which have the same molecular formula and they show different structures, they show isomerism and they call the isomers. Okay, so what the condition? That they should have same molecular formula, okay, and different different structures. Okay, so isomerism can be of two types, right? So it is of two types. The first one is structural isomerism. Structural isomerism, it is in case of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके, नाउ first we will do the structural isomerism, right? Structural isomerism, so we will understand this. In such type of isomerism, position of atom changes within a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना. तो हम यहाँ लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस विद इन मॉलिक्यूल, within molecule. Okay, so such type of isomerism will be structural isomerism. There are some types of the structural isomerism, so we will see the types. So the first type is ionization isomerism. Okay, ionization isomerism. So from the name we can understood or will get the idea that ionization means in coordination compound how they ionize. Complex entity do not ionize, only the counter ion separate out from the complex entity. So the if it is a ionic species or coordination compound is ionic, then we will get the cation and anion. Okay, so it may be possible that complex entity may be cation or anion, or the counter ion may be cation or anion. तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ वो दो पार्ट में ही डिसोसिएट होता है. एक तो काउंटर आयन सेपरेट आउट हो जाता है किससे, कॉम्प्लेक्स एंटिटी से, ठीक है. तो हम इसको एग्जांपल से समझ लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं. तो आयोनाइजेशन जो आइसोमेरिज्म है वो कौन शो करता है, शोड बाय द मॉलिक्यूल्स विच हैव डिफरेंस इन काउंटर आयन. ये वही शो करेंगे जिनमें काउंटर आयन का डिफरेंस होता है. सो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शोड बाय द molecules which have difference in counter ion. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. चलिए, एक एग्जाम्पल है हमारा CO. यहाँ पर हम लिखेंगे COBr NH3 होल 5
SO4। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे एग्जाम्पल CONH3 SO4 Br। देखिए दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, 1 सल्फेट आयन 1 सल्फेट आयन 5NH3 5NH3 1 कोबाल्ट 1 कोबाल्ट ब्रोमीन at 1 atom bromine 1 atom। okay, so molecular structure is same but their structural the structural formation is different। यहाँ पर ब्रोमीन हमने कॉम्प्लेक्स एंटिटी में अंदर लिया है और यहाँ हमने ब्रोमीन को एज अ काउंटर आयन लिया है। तो जब आयोनाइजेशन होगा तो व्हेन द फर्स्ट कंपाउंड विल डिसोसिएट इट विल डिसोसिएट एज द SO4 माइनस एंड दिस कॉम्प्लेक्स एंटिटी प्लस, and when it will dissociate like bromide ion minus ion and this will be positive। तो इनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी इनको डिसोसिएट होने पर हमको इसमें आयंस जो मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। तो ये दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। Second type is hydrate isomerism। ओके, सो व्हाट इज हाइड्रेट? हाइड्रेट वर्ड से हमको पता चल रहा है वाटर मॉलिक्यूल शुड बी देयर। वो वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेंगे जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना, तो शोड बाय द मॉलिक्यूल्स, शोड बाय द molecules which have water of crystallization। ओके, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा बस वही शो करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वी विल टेक एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल ऑफ hydrate isomerism। in these two the molecular structure is same but their structure is different। okay, so molecular formula is same but the structure is different in both the cases। यहाँ पर हमने वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स को लिया है अंदर कॉम्प्लेक्स एंटिटी में, यहाँ 5 है और हमारा एक वाटर बाहर है, इसलिए कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? इट विल शो द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये कोऑर्डिनेशन जो आइसोमेरिज्म है वो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करेगा। ठीक है ना, तो इन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कॉम्प्लेक्स शुड हैव द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कंपाउंड शुड हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसका। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इज दिस, इन विच द नंबर ऑफ लिगेंड्स साइनाइड इज 6, अमीन इज 6, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बोथ द कंपाउंड इज 6। ठीक है, जितने लिगेंड्स अटैच्ड रहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये हमको पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स एडेड हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्रोमियम से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और यहाँ पर 6 एमीन अटैच्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोबाल्ट से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो इन सच केसेस इन दोनों आइसोमेरिज्म में इट मे बी पॉसिबल दैट दे मे इंटरचेंज देयर लिगेंड्स। ये दोनों अपने लिगेंड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इनका चेंज हो तो कोबाल्ट CN6। ठीक है, इसका जो लिगेंड था वो इसके साथ गया
और ऐसा भी हो सकता है इंटरचेंज में कि जो NH3 है वो, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाए, तो ये आइसोमेरिज्म जो होगी वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। तो ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें वन से ज़्यादा एटम डोनर हो बट एट अ टाइम वन ही एटम डोनेट करे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, शोड बाय those compounds which has ligand as ambidentate group, ओके। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल NO2, ठीक है। NO2 में दो डोनर हो सकते हैं, या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अगर इसमें लिंकेज दो तरीके से हो सकता है, दैट इज़ या तो नाइट्रोजन डोनेट करे सेंटर एटम को, ठीक है ना, जो मेटल एटम है, तो इसे लिखेंगे हम N नाइट्राइटो, ये मैं आपको रूल में भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन बाय द वे डोनर है तो हम इसको लिखेंगे O नाइट्राइटो। नाउ दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट इज ऑल्सो of two type, that is geometrical isomerism and optical isomerism, okay। So first we understand the geometrical isomerism, it is show differences geometry of the atom। हम उस एटम के स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी ज्योमेट्री को कैसे ड्रॉ करेंगे, उसमें डिफरेंस को शो करती है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज सिस एंड ट्रांस। cis geometrical isomerism is when the same molecule are at adjacent place, and trans is when the same molecules are at opposite places. We will understand it with the help of example, okay। Now see here example of geometrical isomerism. So we can draw this in two ways. Two types of ligands are there, that is ammonia and chloride. So it is a central metal atom, so we can write it like NH3 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 Cl and Cl, okay। So here adjacent are atoms are at सेम प्लेसेस, मीन्स अमोनिया जो लिगेंड है वो एक साथ हमने लिखा है और क्लोराइड को एक साथ लिखा है, ठीक है। तो एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं, इसलिए ये होगा सिस, ओके। दिस फॉर्मेशन इज सिस। और अगर हम इसको ऐसे शो करें, सो हियर दीज आर दिस अपोजिट प्लेसेस। ये देखिए क्लोराइड आयन को हमने अपोजिट लिख दिया, ये सब एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मतलब बीच में क्लोराइड आयन हमने इसमें प्लेस कर दिया। दिस कॉल्ड ट्रांस, ओके। तो ये ट्रांस फॉर्मेशन है और ये सिस फॉर्मेशन है। अब दूसरा है, इसका एग्जांपल और भी हो सकता है। See next example. So 4 ligands are here, so square planar will be the shape. Here the shape was octahedral because of 6 ligands, okay।
So here we will see chloride ion and amine are the ligand here. So this oppositely placed ligand, so it is a trans phase. Okay, and this is adjacent पोजीशंस पर हमारे सेम ligand है, तो ये हमारा हो जाएगा सिस, राइट। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल। See the optical isomerism. So in optical isomerism, the behavior of the compound are different towards PPL. And what is PPL? Plane polarized light. And what is this light? It is do not show the dispersion, it go in a straight line. तो PPL लाइट को जो सॉल्यूशंस राइट में रोटेट कर देते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, इसको प्लस साइन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट में रोटेट करते हैं उसको हम नेगेटिव साइन या लीवो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स का बिहेवियर है वो पीपीएल के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। कुछ कंपाउंड उसे लेफ़्ट में और कुछ उसको राइट में क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो उसको हम डी डेक्स्ट्रो और एल लीवो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो फॉर द ऑप्टिकल बिहेवियर द compound should have the chiral carbon. And what is chiral carbon? The carbon which have the 4 different group of or atoms attached to its 4 valency. उसकी 4 वैलेंसी से 4 डिफरेंट तरीके के एटम्स या मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होने चाहिए। वही हमारा जो कंपाउंड होता है वो कार्बन कायरल एटम होता है, और वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो आज हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने 2 टाइप्स का होता है ये, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज दैट इन विच द पोजीशन ऑफ द एटम चेंजेस विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें डिफरेंट आयन रिलीज होंगे। सेकेंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिसमें वाटर प्रेजेंट हो वही इस आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, वो कंपाउंड शो करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। इट मे बी पॉसिबल दैट देयर लिगेंड कैन बी इंटरचेंज बिकॉज ऑफ द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। और लिंकेज वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है, मीन्स जिसमें मोर देन 1 एटम इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एम्बीडेंटेट है बट एट अ टाइम ओनली 1 एटम विल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर मेटल एटम। नाउ नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि 2 तरीके का होता है। एक तो जियोमेट्रिकल, सो इसमें ज्योमेट्री ऑफ एटम इज डिफरेंट, जो सिस और ट्रांस हो सकता है। एडजेसेंट पोजीशन पर लिगेंड्स हों अगर सेम तो वो हमारा सिस हो जाता है, और जब वो अपोजिट पोजीशन पर आ जाएं तो वो ट्रांस होता है। नेक्स्ट हमने इसमें देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो वही कंपाउंड शो करेंगे जिसमें कायरल कार्बन होता है, और ऐसे सॉल्यूशंस पीपीएल को रोटेट कर देते हैं राइट या लेफ़्ट में, फिर उसको हम डी या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आवर द टॉपिक ऑफ isomerism which is over here. In next video we will go for the drawbacks of the Werner's theory, then valence bond theory, okay। and अगर थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग नहीं हुआ तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।